ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی قومی خونائم میں آپ سب کے استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہندوستان ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے، وہاں بہت پیسہ ہے، ہماری مدد کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کڑی تنقید۔ یہ تشویشناک ہے، تحقیقات جاری ہے۔ یو ایس ایڈ فنڈنگ تنازع پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا رد عمل۔ آتشی دہلی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گی، عام آدمی پارٹی کا اعلان۔ ہندوستان خلا کے میدان میں نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے، من کی بات میں مودی کا اعتراف۔ مہاراشٹر اور کرناٹک میں زبان کا تنازع بڑھا، دونوں ریاستوں کے درمیان بس خدمات معطل۔ نئی تھی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہندوستان کو لے کر دیے گئے بیانات اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث ہیں۔ اس درمیان ٹرمپ نے کہا کہ ہندوستان ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے، وہاں 200% تک ٹیرف ہے، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، انہیں انتخابات میں $18 ملین مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم انتخابات کے لیے ہندوستان کو پیسہ دے رہے ہیں، انہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹرمپ نے یہ بیان کنزرویٹو پولیٹکس ایکشن کانفرنس میں اپنے اختتامی دوران کی دیا ہے۔ چوتھی بار ہے جب ٹرمپ نے ہندوستان میں ووٹروں کی حصہ داری بڑھانے کے لیے یو ایس اے آئی ڈی فنڈ کو لے کر اپنا دعویٰ دہرایا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے اس معاملے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا یہ فنڈنگ کسی دیگر کو انتخابات میں جتانے کے لیے دی گئی تھی۔ Here are some of the flagrant scams that, as an example, they've spent money on and we've been able to recapture for a large dose of it at least. $520 million for a consultant to, think of that, $520 million, $520 million. You know, when I hire consultants and they just take advantage of me, it's a horrible thing to watch. And I give them $25,000, I feel I'm overpaying. These guys got $520 million. Environmental, social, governance, and investments in Africa. $25 million to promote biodiversity, conservation, and socially responsible behavior in Colombia. This is Colombia, South America, not Columbia University. Of course, that might be worse, actually, based on their actions. $40 million to improve the social and economic inclusion of sedentary migrants. Nobody knows where. Who are they? Where do they come from? Just sedentary migrants. Nobody even knows what a sedentary migrant is. If they were sedentary, they wouldn't be a migrant, right? They wouldn't move. No, they wouldn't move. They'd stay in the same place. Right, Doug? $42 million for social and behavior change in Uganda. $10 million for Mozambique medical male circumcisions. Why are we going to Mozambique to do circumcisions? It's a lot of money. $14 million for improving public procurement in Serbia. Here's a beauty. $486 million to a consortium of elections and political process strengthening ideas, of which $22 million goes to inclusive and participatory political process in Moldova. $29 million goes to strengthen the political landscape and help them out so that they can vote for a radical left communist in Bangladesh. You had to see who they supported. You wouldn't believe, yeah, you would believe it. Nobody in this room would be in that group. $20 million for fiscal federalism and $19 million for biodiversity in Nepal. $47 million for improving learning outcomes in Asia. $18 million for helping India with its elections. Why the hell? Why don't we just go to all paper ballots? Let them help us with their elections, right? Voter ID. Wouldn't that be nice? We're giving money to India for elections. They don't need money. They take advantage of us pretty good. One of the highest tariff nations in the world. We try and sell something, they have a 200% tariff, and then we're giving them a lot of money to help them with their election. $32 million for the Prague Civil Society Center. $14 million for social cohesion
in Liberia, $9.7 million to develop a cohort Cambodian youth with enterprise-driven skills. Think of that. Millions of dollars for sex change operations in Guatemala, $20 million for Sesame Street in Iraq. They put on a little play on the street. $20 million! You could do it on Broadway and have $19 million left over. No, it's a scam. They get kickbacks and all sorts of things. It's a scam. Who ever heard of it? Think of it, $20 million Sesame Street. अमरीकी यूएस एड फंडिंग को लेकर हिंदुस्तान में जहां सियासत गर्म है और एक जानिब कांग्रेस हुकूमत से सवाल करती नजर आ रही है कि ये रकम कहां गई, वही वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अब इस पर रद्दमल ज़ाहिर किया है। ट्रंप और अमरीकी इंतज़ामिया ने दावा किया है कि हिंदुस्तान में इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए करोड़ों डॉलर भेजे गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये मसला उठाया था। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने दिल्ली में एक प्रोग्राम में कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से जो मालूमात सामने आई हैं वो यकीनन तशवीशनाक है। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। Your security can be threatened without your leaving your house, because the thought processes, the influences, the narratives, your morale, your sense of what is right and wrong is all influenced by your phone, what you read every day, the pictures you see. So coming back to your question, look, I think some information has been put out there by the Trump administration people, and obviously that is concerning. It would suggest that there are activities whose which has a certain objective out here to push a narrative or a viewpoint. I think as a government we are looking into it, because such organizations have an obligation to report. And my sense is, the facts will come out. Now, I read saying, so and so dealt with USAID or so and so. Look, it's not a question of did you deal with USAID or not. USAID was allowed, has been here historically. But USAID was allowed here in good faith, to do good faith activities. Now, suggestions are being made out of America that there are activities which are in bad faith. So, it surely warrants a look. And if there is something to it, I think the country should know who are the people involved in the bad faith activities. Trump is an American nationalist. आम आदमी पार्टी ने इतवार के रोज़ ऐलान किया कि साबिक़ वज़ीर आला आतिशी दिल्ली असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगी। आपके रियासती सदर गोपाल राय ने आज ये ऐलान किया। इन्होंने कहा कि आज AAP कानून साज पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें अरकान असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर आतिशी को अपोजिशन लीडर मुंतखब किया है। गोपाल राय ने कहा कि मोहतरमा आतिशी ने दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाया था। अपोजिशन लीडर के तौर पर वो केजरीवाल हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले कामों की हिफाजत के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अवाम से किए जाने वाले वादों को पूरा करवाने के लिए जिम्मेदार होंगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच खेले जाने को लेकर कांग्रेस रहनुमा राशिद अल्वी ने सवाल उठाया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी के रहनुमा पाकिस्तान के खिलाफ इतने बयान देते हैं, इंतखाबी नारे लगाते हैं, अगर कांग्रेस जीतेगी तो तालियां वहां बजेगी, और ख़ुद दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट मैच की इजाज़त देते हैं। राशिद अल्वी ने कहा कि अब हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान की टीम के साथ मैच खेल रही है, ये किस तरीके की पॉलिसी है? अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो उसके साथ खेलने का क्या मतलब? हुकूमत बार बार कहती है कि जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी हम बातचीत नहीं करेंगे। क्या दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है? क्या कश्मीर में फ़ौजी नहीं मारे जा रहे हैं? शहीदों के घर वाले क्या सोचेंगे? मैं हुकूमत के दोहरे रवैये की मज़म्मत करता हूँ। इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत हिंद की पॉलिसी समझ से बाहर है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता माह मुल्क ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के 100वें रॉकेट लॉन्च का मुशाहिदा किया, जो सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि खलाई साइंस के मैदान में नई बुलंदियों को छूने के हमारे अज़म की अक्कासी करता है। आज अपने माहाना मन की बात प्रोग्राम में मोदी ने कहा कि हमारा खलाई सफ़र बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शुरू हुआ है। इसमें हर कदम पर चैलेंजेस थे, लेकिन हमारे साइंसदां फ़तेह हासिल करते हुए आगे बढ़ते ही गए। वक्त के साथ खला की इस परवाज़ में हमारी कामयाबियों की फेरिस्त तवील होती जा रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के दरमियान ज़बान को लेकर तनाज़ा काफ़ी बढ़ गया है। इसके पेश नज़र दोनों रियासतों के दरमियान बस खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं।
पहले बेलगावी में मराठी ना बोलने पर कंडक्टर की पिटाई और फिर कर्नाटक में महाराष्ट्र के ड्राइवर पर कन्नड़ में जवाब न देने पर हमले के बाद ये फैसला किया गया है। इस दरमियान पुणे में उद्धव ठाकरे की पार्टी के कारकुनों ने मुजाहरा किया। कारकुनों ने पुणे और सोरगेट इलाके में कर्नाटक के नंबर प्लेट वाली बसों पर स्याही पोत दी। महाराष्ट्र के वजीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनायक ने कहा कि मुसाफिरों और मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर्नाटक के दरमियान बस खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि कल रात कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कुछ बदमाशों ने MSRTC के ड्राइवरों पर हमला किया, उनके चेहरे पर स्याही लगा दी। ये वाक़या बेहद अफसोसनाक है और हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। श्रीनगर के टैगोर हॉल में कश्मीरी ड्रामे ललेश्वरी के रिपेटरी थिएटर ने सामीन को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। इसका एहतमाम विमत आर्ट ग्रुप ने किया था, जिसका मकसद कश्मीरी शायरी में लाल दीद के किरदार को उजागर करना था। ये शो मारूफ फनकारा सुमन पंडा ने पेश किया। उनकी अदाकारी ने बड़े पैमाने पर सामीन को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। ख़ास तौर पर वादी कश्मीर, जहाँ लोग मुनफरिद सक़ाफ़तों के साथ रहते हैं, इस वादी को सूफ़ी और संतों की वादी के तौर पर जाना जाता है। माजी में वादी कश्मीर ने मर्द और ख़वातीन शायरों की एक अच्छी तादाद पैदा की है, जिन्होंने कश्मीरी ज़बान के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा किया है। यही वजह है कि कई दहाइयों से फ़न और कश्मीरी अदब से मोहब्बत करने वाले हमेशा इन अदबी शख्सियत की अहमियत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ शोज़ और थिएटर ड्रामे मुनक़िद करते रहते हैं। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे ललेश्वरी, माता ललेश्वरी, उनका जो ये कैरेक्टर करने का मौका मिला स्टेज पर। बहुत सारे लोगों ने तो पहले भी इसके स्टेज शोज़ किए हुए हैं, लेकिन मैं आज पहली बार कर रही हूँ। और श्रीनगर में पहले भी मैं काफ़ी सारे प्लेज लेकर आ चुकी हूँ यहाँ पे। 2023 में अभी रिसेंटली मैंने वक्त परतब किया था। और ललेश्वरी देवी जो है, जो माता ललदेद है, आप तो जानते हैं कि कश्मीरी लोग जो, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, सब कितना मानते हैं इस देवी को, शायरी को कितना मानते हैं। और 14th सेंचुरी में ललदेद जो थी, उनका जन्म हुआ था। और अब जम्मू से अब हम यहाँ पे जो ये प्ले लेकर आए हैं, मैं चाहती हूँ कि लोग यहाँ पर देखें और इस प्ले को सराहें। मुझे लगता है कि ये वक्त की अशद ज़रूरत है कि हमारी जो सकाफ़त है, सकाफ़त दरअसल हमारी पहचान होती है, तो इस पहचान को हमेशा के लिए ज़िंदा करना होगा। और ऐसे ही प्रोग्राम्स के ज़रिए, चाहे वो मुशायरे हो, चाहे वो इस तरह स्टेज प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं, तो इनके ज़रिए से हम अपनी, खासकर जो हमारी नई जनरेशन है, उन तक हम इसी ज़रिए से पहुंच सकते हैं, ताकि उनको पता चले कि उनकी सकाफ़त क्या है, उनकी मीरास क्या है, उनका माजी क्या है, तो किस तरह हम यहाँ तक हमने सफ़र तय किया है, तो इससे उनको वाक़फ़ियत हासिल। ललेश्वरी का जन्म 700 साल पहले हुआ था, ललदत जिन्हें बोलते हैं। 700 साल पहले जो उनके वाक़ थे, आज देखिए कितने रेलिवेंट है। उनके एक एक वाक़ आज की डेट में रेलिवेंट है। शायरी जो है वो रेलिवेंट है आज की डेट में। ऐसे ही हबा खातून है, कितना उनका विजन देखो कितना था, कितना विजन लेके वो आए थे इस धरती पे, और वो भी हमारे कश्मीर की धरती पे, जिसे सूफी संतों की धरती कहा जाता है। यहाँ पे आके इन्होंने ये चीज़ें लिखी और आज रेलिवेंट हो रही हैं। ज़रूरत ये है कि हमारी जो नई जनरेशन है उन तक ये बात ज़रूर पहुँचे, क्योंकि आज सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम, बाकी चीज़ों का ज़माना है, लेकिन कोशिश है अपनी मादरे ज़बान कश्मीरी को आगे बढ़ाने में इतना करें, हमारा ये कंट्रीब्यूशन रहे कि जो ललदत का जो मैसेज है वो यूथ तक पहुँचे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। हिंदुस्तान हमारा फ़ायदा उठाता है, वहाँ बहुत पैसा है, हमारी मदद की इसे ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी तनकीद। ये तशवीशनाक है, तहक़ीक़ात जारी है। US एड फंडिंग तनाज़े पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का रद्द-ए-अमल। आतिशी दिल्ली असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगी, आम आदमी पार्टी का ऐलान। हिंदुस्तान खला के मैदान में नई बुलंदियों को छू रहा है, मन की बात में मोदी का एतराफ़। महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज़बान का तनाज़ा बढ़ा, दोनों रियासतों के दरमियान बस खिदमात मुअत्तल। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।